اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ وقال اللہ تعالی فی موضع آخر، اِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ تمام قسم کی تعریفات، بڑائی و بزرگی و کبریائی و حمد و ثنا اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے، جو اپنی ذات کے اعتبار سے تنہا ہے، اکیلا ہے، جو ہم سبوں کی عبادت کا خاص حقدار ہے، اور جس کے ساتھ عبادات میں یا اس کے صفات میں ہم کسی کو شریک نہیں کر سکتے، جس کی بے شمار نعمتیں ہماری زندگی اور جانوں پر ہیں، جس کی فضل سے، جس کی توفیق سے ہماری زندگی گزر رہی ہے، اور یہ موقع غنیمت بھی اسی کی جانب سے عطا کیا گیا ہے کہ ہم اور آپ اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید کے متعلق گفت و شنید کر سکیں۔ محترم و معزز سامعین و حاضرین و ناظرین اکرام، آج کے درس میں انشاءاللہ تعالی سورۃ المائدہ آیت نمبر 57 سے ترجمہ و تفسیر آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی، اس دعا کے ساتھ کہ الہ العالمین تو ہم سبوں کی حاضری کو قبول فرما لے، اور یہ جو سلسلہ قرآن حکیم کے متعلق جاری و ساری ہے، اللہ تو اس کے اندر مزید برکت عطا فرما، تا قیامت اس کو قائم رکھ، اور ہمیں حق بات سننے، حق بات کہنے، اس پر عمل کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ آج کے درس میں انشاءاللہ تعالی زیادہ تر تذکرہ اہل کتاب ہی کے اوپر ہوگا، اور اہل کتاب کے ساتھ ساتھ ان طبقات کا بھی ذکر ہوگا جس کو منافق کہتے ہیں۔ قرآن مجید کے اندر ان طبقات کا بارہا ذکر ہونا، مسلسل ذکر ہونا، اور وقتاً فوقتاً پے در پہ ذکر ہونا، یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ اگر ہم اپنی گفت و شنید یا اپنی کنورسیشن میں، گفتگو میں ہم کسی مسئلے کے اوپر بات کرتے ہیں، اور بات کرتے کرتے اگر ایک ہی چیز کو بار بار ہم دوہرائے، ریپیٹ کریں، تو کہنے والے کے ساتھ ساتھ سننے والے کو بھی عجیب محسوس ہوتا ہے، کیونکہ یہ کلام، بات چیت، ٹاک کا یہ اصول ہوتا ہے کہ اگر کوئی چیز بھاری بھرکم ہو، مشکل ترین ہو، تو اس کو بارہا دہرایا جا سکتا ہے، لیکن جو چیزیں آسان ہو، سہل ہو، تو اس کو بار بار دہرانے سے کوئی فائدہ نہیں۔ لیکن قرآن مجید کا یہ انداز کہ پورے 30 پارے کے اندر اللہ تعالیٰ نے بارہا اہل کتاب کا تذکرہ کیا، اسی طریقے سے اہل کتاب کے تذکرے کے ساتھ ساتھ بشمول منافقین کا ذکر فرمایا، یہاں تک کہ قرآن کے اندر سورہ منافقون ایک سورت نازل کر دی اللہ رب العالمین نے۔ تو یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، اس لیے بھی نہیں ہے
کہ یہ قرآن ہم لوگوں کے لیے سراپا ہدایت ہے. ہدایت کوئی چھوٹی موٹی چیز نہیں ہے، یہ ایک ایسی قیمتی شے ہے کہ اگر اللہ کسی کو ہدایت نہ دینا چاہے اور اس کے پاس دنیا کی دولت موجود ہو تو بھی وہ اس ہدایت کو نہیں پا سکتا. یہ ہدایت کا مقام و مرتبہ ہے. اللہ تعالیٰ نے بار بار ان لوگوں کے بارے میں اس لیے بھی بیان کیا کہ تعلیم کے سلسلے میں جب کوئی شخص کسی کو تعلیم دیتا ہے، پڑھاتا ہے، سکھاتا ہے، تو آپ دیکھیں گے پڑھائی لکھائی میں اگر ہم نیچے کے کلاس میں ہو یا اوپر کلاس میں چلے جائیں، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہے جس کا ذکر ہر سال اور ہر کلاس میں کیا جاتا ہے. جیسے تربیت کا ذکر. ایسا نہیں کہ اگر کوئی بچہ 1 کلاس میں تو اس کی تربیت کی زیادہ ضرورت ہے اور 12 میں تو ضرورت نہیں ہے. اگر آج کے حالات دور کے دیکھیں تو زیادہ تر تربیت کے حقدار بڑے لڑکے ہیں. وہ محلے میں ایسے چلیں گے کہ آپ کو راستہ چلنے نہیں دیں گے، ایسے آپس میں ہنسی مذاق کریں گے کہ آپ کے اوپر گر جائیں گے، کیونکہ پیچھے نہیں دیکھ رہے. پیچھے کوئی راہگیر ہے، چلنے والا ہے، کوئی ادھر بھاگ رہا ہے، کوئی ادھر بھاگ رہا ہے، کوئی ادھر لڑ جا رہا ہے، کوئی ادھر. یہ کیسے حالات ہیں؟ یہ وہ لوگ بچے ہیں جو بڑے ہیں، باشعور ہیں، لیکن ان کو تربیت کی اشد اور سخت ضرورت ہے. قرآن کا بھی یہ انداز ہے. کیا انداز ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ بارہا اس لیے بیان کرتا ہے تاکہ ہمارا ذہن ان لوگوں کے بارے میں تر و تازہ رہے. ایسا نہیں کہ یہ ذکر بہت پرانا ہو جائے تو ہم بھول بھی جائیں، اور بارہا جب ذکر ہوتا رہے گا تو ہم ان لوگوں سے اپنے آپ کو بچائے، کیونکہ خطرہ ہمارے ایمان کو انہی لوگوں سے ہے. آپ اگر اس سے پہلے درس گزر چکی ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 69 آپ کھول کر دیکھیں گے تو اللہ نے اس کے اندر بیان کیا کہ ان میں سے ایک جماعت ایسی ودت طائفتم، ان میں سے ایک جماعت ایسی ہے ان یضلونا، جو آپ کو گمراہ کرنا چاہتی ہے. کن کے بارے میں ہے؟ یہ اہل کتاب کے بارے میں ہے کہ اہل کتاب میں سے ایک جماعت ایسی جو تم کو گمراہ کرنا چاہتی ہے، جس کا مقصد ہے کہ آپ گمراہ ہو، جو فیلڈ پر کام کر رہی ہے، جس کا مشن یہ ہے کہ مسلمانوں کو دین سے اس کے دور کیا جائے. یہ بات اہل کتاب کو بھی اچھی طریقے سے پتا ہے کہ برحق دین اگر کوئی ہے تو اسلام ہے. یہ وہ لوگ بھی جانتے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد اور بعثت یہ برحق ہے، وہی آخری پیغمبر ہے، آخری نبی ہے، لیکن اپنے دل کو تسکین اور سکون پہنچانے کے لیے وہ جات پات کی بات کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول ہمارے نسل سے نہیں تھے. یہ صرف دل کو سکون پہنچانے کے ذریعے کچھ نہیں ہے. اور یہی وجہ ہے کہ یہ کھیس جسو کہہ سکتے ہیں کہ ان کو اپنے اندر یہ محسوس ہوتا ہے کہ کیوں نہیں آخری پیغمبر اہل کتاب میں سے کیوں نہیں ہوا. آپ جانتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام. ایک نسل عیسیٰ علیہ السلام سے چلی حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک، اور ایک نسل چلی اسماعیل علیہ السلام سے. تو حضرت اسماعیل کے بعد آخری پیغمبر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوئے. السلام. تو یہ بھی ایک معاملہ ہے کہ آخر ایسا کیوں ہوا. تو اہل کتاب کا جو معاملہ ہے ان کا یہ فیلڈ پر کام کرنا کہ کیسے اللہ والوں کو، مسلمانوں کو راہ راست سے ہٹا دیا جائے، یہ بھی ایک معاملہ ہے. اور آپ دیکھیں کہ وہ اپنے اس فیلڈ پر، اس کام پر اتنا سرگرم ہے کہ بہت ساری ایسی چیزیں اہل کتاب کی آج ہم مسلمانوں کے گھروں کے اندر داخل ہو چکی ہیں، اور داخل ہونے کے ساتھ ساتھ اب اس پر عمل پیرا بھی ہمیں بڑی پابندی سے. یہاں پر بھی ذکر آئے گا پابندی کے سلسلے میں انشاءاللہ تعالی، کہ اتنے زیادہ اہل کتاب کے سازشوں میں ہم پھنستے اور الجھتے چلے جا رہے ہیں، ہمیں پتہ اور خبر بھی نہیں، اور ہم اس کے ڈیفینڈ میں بھی آتے ہیں. مثال کے طور پر اہل کتاب کیا چاہتے ہیں؟ اللہ نے کہا وَدَّتْ طَائِفَةٌ، ان میں سے ایک جماعت ایسی جو چاہتی ہے کہ لینا آپ کو گمراہ کرے، ہے نا. تو گمراہ کرنے کی بھرپور کوشش کر رہے ہیں، بلکہ کامیابی بھی ان کو ملے گی، لیکن ہمیں یہ خبر نہیں کہ ہم گمراہ ہیں، ہم اس خبر سے بے خبر ہیں. مثال کے طور پر مسلمانوں کے اندر اگر آج کچھ چیزیں ایسی ہے جو ایک طول پکڑتی ہوئی چیز نظر آئے، جیسے کہ جنم دن منانا، برتھ ڈے وغیرہ، کیا ہے؟ کیا مسلمانوں کا شیوا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 نواسے تھے، حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے بڑی محبت تھی، بڑی محبت کرتے تھے اپنے دونوں نواسوں سے. کیا آپ نے اپنے دونوں نواسوں کا برتھ ڈے کیا؟ اتنی محبت کرنے والے
کہ اللہ کے رسول نے یہاں تک کہہ دیا کہ جو ان سے محبت کرے گا میں اس سے محبت کروں گا، جو ان سے نفرت کرے گا میں ان سے نفرت کروں گا، بغض رکھیں۔ اتنا اونچا مقام ہے حسنین کی۔ کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی محبت میں طالب قلب ہی کے لیے یعنی ان کو خوش کرنے کے لیے کیا آپ نے برتھ ڈے منایا؟ نہیں منایا۔ یہ رواج یہ رسم کہاں سے آئی؟ اہل کتاب سے۔ یہ ہندوانہ رسم بھی نہیں ہے، یہ یہود و نصارہ کی یہ پیدوار ہے۔ اسی طریقے سے شادی کی سالگرہ اینیورسری، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی شادی 25 سال کی عمر میں ہوئی۔ کن سے ہوئی؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ہوئی۔ 50 سال تک اللہ کے رسول ہوئے اور وہ آپ کے حیات میں تھی۔ 50 سال میں ان کا انتقال میں اللہ کے رسول کی عمر 50 سال ہوئی تو وہ انتقال کی، اور جب تک وہ آپ کی بیوی تھی آپ نے دوسرا نکاح نہیں کیا تھا۔ 25 سال آپ لوگوں کا رشتہ رہا میاں بیوی کا۔ کیا 25 سال میں ایک سال بھی تو اللہ کے رسول اینیورسری مناتے؟ منانا چاہیے تھا۔ کیا آپ نے منایا؟ نہیں منایا۔ قرآن کے لفظ جھوٹے نہیں ہو سکتے، لیکن اب مسلمان ڈیفینڈ میں آ جاتے ہیں کہ کیا کرے، بچہ بڑا ضد پکڑ لیتا ہے اور اس کے لیے ہم دل سے نہیں کرتے ہیں، ہم مطلب اوپر سے کرتے ہیں۔ آپ شراب بھی پی لیجیے، بولے دل سے نہیں پی رہے، اوپر سے پی رہے ہیں، دل میں حرام مانتے ہیں۔ اس طرح کے بہت ساری مثالیں ہیں۔ تو یہ چیزیں کیا ہیں؟ ان کی ایک جماعت ہم کو گمراہ کرنا چاہتے ہیں، ہم گمراہ ہو رہے ہیں، اور سمجھانے پر بھی سمجھانے والوں کو برا مانا جاتا ہے، ان کو اپڈیٹڈ نہیں مانا جاتا کہ یہ پرانے خیالات کے لوگ ہیں، یہ آج کی سوچ کے لوگ نہیں ہیں، یہ کافی پیچھے ہیں۔ بہرحال آج کے درس میں اسی اہل کتاب کا تذکرہ ہے۔ اللہ نے کہا سورہ مائدہ آیت نمبر 57 کے اندر، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، ایمان والوں سے اللہ نے خطاب کیا، لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا، اے ایمان والو تم ان لوگوں کو اپنا دوست نہ بنا، ایسے لوگوں کو اپنا دوست اپنا ساتھی نہ بنا جو تمہارے دین کو کھیل کود اور مذاق بناتے ہیں۔ ہزوا ولعبا، لعب عربی کے اندر کھیل کود کو بولتے ہیں، اسپورٹس کو بولتے ہیں۔ تم ان لوگوں کو اپنا دوست نہ بناؤ جو تمہارے دین کو کھیل تماشا سمجھتے ہیں، کھیل کود اور ہنسی مذاق بناتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ الحب للہ والبغض للہ، ہماری دوستی اگر کسی سے ہوگی تو اللہ کے لیے ہوگی، دشمنی کسی سے کریں گے تو اللہ کے لیے کریں گے۔ ایک مومن اپنی ذات کے لیے کسی سے محبت نہیں کر سکتا۔ اگر ہم کسی سے محبت کریں تو اللہ کے لیے کریں، کسی سے نفرت کرے تو اللہ کے لیے کرے، اپنی ذات کے لیے نہیں کرے۔ اگر کوئی ہمیں فائدہ پہنچا رہا ہے اور اسلام کو نقصان پہنچا رہا ہے تو میرا دوست نہیں ہو سکتا، لیکن کوئی گرچہ کوئی اپنی ذات سے ہم کو نقصان پہنچا ہے، اس سے دین کا فائدہ ہو رہا ہے تو اس کو ہم دوست بنا سکتے ہیں، کیونکہ ہمارا مقصد اپنی ذات کو فائدہ پہنچانا نہیں بلکہ اللہ کے دین کو فائدہ پہنچانا ہے۔ اے ایمان والو ایسے لوگوں کو اپنا ساتھی دوست نہ بنا جو تمہارے دین کو مذاق بناتے ہیں، ہزوا کھیل کو تماشا بناتے ہیں، ہنسی مذاق بناتے ہیں، لعب کھیل کود بناتے ہیں۔ کون لوگ؟ من الذین اوتوا الکتاب، چاہے وہ اہل کتاب میں سے ہو، چاہے وہ اہل کتاب میں سے من قبلکم جو تم سے پہلے تھے، والکفار اولیاء، اور چاہے تمہارے کفار دوست ہو، ایسے دوست جو کافر ہو، جو اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتے۔ یعنی کفار کے اندر بھی اگر کوئی ایسا کافر ہے جو اسلام کو، دین کو، ہمارے مذہب کا مذاق اڑاتا ہو، ایسے لوگوں کو اپنا ساتھی نہیں بنا سکتے۔ کفار کے اندر بھی اچھے لوگ ہیں، اہل کتاب کے اندر بھی اچھے لوگ ہیں، اسی لیے اللہ نے ڈائریکٹ پورے کلی طور پر منع نہیں کیا کہ آپ کسی بھی کافر کو اپنا دوست نہیں بنا سکتے، کسی بھی اہل کتاب کو اپنا دوست نہیں بنا سکتے، بلکہ جو ان میں سے تمہارے دین کا مذاق اڑاتے ہیں ان کو، اور دوستی بھی جو ان سے ہم کر رہے ہیں تو ہمارے دوستی کرنے کا مقصد یہ اللہ کے دین کی سربلندی، اللہ کے لیے ہم دوستی کر رہے ہیں، اللہ کے لیے ہم دشمنی کریں۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اللہ نے کہا کہ اگر تم مومن ہو تو اللہ سے ڈرو۔ یہ شرط اللہ تعالیٰ نے یہاں پر لگا دیا کہ اگر تم مومن ہو، اگر ہم مومن ہیں تو ہم کو اللہ سے ڈرنا ہوگا، یا اس کا ایک ترجمہ ایسے کر لیجیے، اللہ سے ڈرو اگر تم مومن ہو۔ تو یہ تو بہت بھاری بڑی بھڑکم بات ہے، یعنی یہ ہوتا ہے نا کہ ایک آدمی کو چیلنج کرنا، اگر تم ایسا ہو تو کر کے دکھاؤ، اگر آپ ایسے ہیں تو ثابت کیجیے۔ تو یہ کیا ہے؟ شرط لگا دیا گیا کہ جس چیز کے ہم دعوے داری کر رہے ہیں اگر وہ چیز ہمارے اندر ہے تو ہم کو ثابت کرنا ہوگا۔ اللہ نے یہاں بھی کہا واتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو تو اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو اگر تم مومن ہو، دونوں ایک ہی بات ہے۔ شرط اللہ نے لگا دیا کہ اگر ہم اپنے آپ کو مومن مانتے ہیں تو ہم اللہ سے ڈریں گے۔ اس کا ایک مطلب یہ بھی ہوا کہ مومن کی پہچان یہ کہ وہ اللہ سے ڈرتے ہیں،
एक माना ये भी हुआ कि अल्लाह से डरने वाले की पहचान ये कि वो मोमिन है। आप किसी तरीके से माना निकालें, माना एक ही जगह आ रहा है सेंटर पे, क्या? अल्लाह का खौफ। अल्लाह का खौफ हर हाल में आपके अंदर, हमारे अंदर, सबों के अंदर होना चाहिए। ये ईमान की पहचान है। मतलब मोमिन किसे कहते हैं? मोमिन का डेफिनेशन यहाँ भी इसको ले सकते, वत्तकुल्लाह इन कुंतुम मोमिनीन। मोमिन वो होता है जो अल्लाह से डरता है। अब देखिए, अल्लाह से डरने की बहुत बड़ी तफसीर है, क्योंकि यहाँ पे वो चीज़ नहीं बयान करना है, लेकिन मुख्तसर हमें ये समझना होगा कि अल्लाह का खौफ क्या होता है। एक मुसलमान आमतौर पर आप अल्लाह से डरते हैं तो हाँ डरते हैं, नमाज ही नहीं पढ़ता, और कह अल्लाह से डर रहे हैं, तो नहीं, ये डर नहीं हुआ। अल्लाह का डर का मतलब ये हुआ कि अजान हुए दौड़ गई, नहीं तो अल्लाह अजाब दे देगा। जहाँ नमाज छोड़ेंगे अल्लाह अजाब दे देगा, बेनमाजी होंगे तो अल्लाह में कहाँ डाल देगा? जहन्नम में डाल देगा। ये अल्लाह का खौफ है। हमें ऑफर हुआ सूद का, रिश्वत का, वहाँ डर जाए हम नहीं, कैसे ले सकते हैं? अल्लाह का खौफ है। अल्लाह ने मना किया है कि हम सूद नहीं खा सकते, रिश्वत लेन देन नहीं कर सकते। अल्लाह का डर वहां पे आ गया। उसको कहा जाता है अल्लाह का डर। अल्लाह का डर वो नहीं जुबानी तौर पे होता है कि हम डरते हैं अल्लाह से और कोई काम वो नहीं कर सकता राजी। तो इन कुन तुम मोमिन, अगर तुम मोमिन हो, अल्लाह ने ये क्या कहते हैं? तो कहते हैं ना लोग अपना आपस की जुबान में कि डायरेक्ट चैलेंज दे दिया हमें, हमारे दिल को एक चैलेंज मिल गया हमको कोई आजमा रहा है, चलो ठीक है आज में उतरते इंशाअल्लाह ताला। तो देखिए यहाँ पे अहले किताब के मुतालिक, कुफार के मुतालिक अल्लाह ने बयान किया कि ऐसे लोगों को दोस्त ना बनाओ जो तुम्हारे दीन का मजाक उड़ाते हैं। क्या है? वल्लज़ीना तख़ज़ू दीनकुम हुज़ुवन व लइबा, जो तुम्हारे दीन को हंसी मजाक और खेल कूद समझते हैं। फिर आगे अल्लाह आयत नंबर 58 में बयान कर रहा है, वो इज़ा नादैतुम इला सलात तख़ज़ूहा हुज़ुवन व लइबा, और ये कि जब तुम उन्हें नमाज की तरफ बुलाओ तो उसका मजाक बनाते हैं। देखिए ये भी आज के दौर में प्रैक्टिकल चीजें हैं कि अगर हम लोग 4 5 6 7 दोस्त हैं तो ये नेचुरल चीज है कि 2 4 लोग नमाजी होते, 4 लोग नहीं होते। तो जो नहीं होते हैं उन पर एक चीज ये होती है कि वो मजाक नहीं उड़ाते, वो कहते हैं भाई ठीक है पढ़ेंगे इंशाल्लाह, किसी तरह बोल के वहां से निकल जाते हैं। और एक होते हैं कि अरे भाई आप ही हम सूफी संत बनने जा रहे हैं क्या? आप ही हम पूरा दुनिया को पलट डालेंगे, आप ही अल्लाह वाले हैं, आप फरिश्ता बने हुए हैं। जुम्मा में तो पढ़े ना हम, अब क्या पढ़े? फिर आएगा जुम्मा पढ़ लेंगे। यानी एक तो पढ़ते भी दूसरा मजाक बनाते हैं। अल्लाह कह रहा है ना दे तुम मुसलाता, जब तुम उनको आवाज देते हो नमाज के लिए कि चलो भाई नमाज का वक्त हो गया, नमाज पढ़ लेते हैं, इत्तखज़ूहा हुज़ुवन व लइबा, वो भी खेल कूद हंसी मजाक बना देते हैं। क्या नमाज पढ़ लेते हैं? पढ़ेंगे इंशाल्लाह, कल पढ़ लेंगे। वालेकुम अस्सलाम। ज़ालिका बिअन्नहुम कौमुन ला याक़िलून। देखिए अल्लाह ने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया कौमुन। कौम किसको कहते हैं? बहुत सारे लोग जब एक चीज पर इकट्ठा हो जाते हैं तो एक कौम कहलाते हैं। हम सब एक मुसलमान हैं, यहाँ जो बैठे हुए हम लोग एक कौम है जो मुसलमान है, सब मुसलमान कौम है। अल्लाह ने कहा ये कौन लोग करते हैं जो नमाज के लिए आप पुकारेंगे तो वो क्या कहेंगे? वो हंसी मजाक खेल कूद बना लेंगे, है ना? ये कौन लोग हैं? ज़ालिका बिअन्नहुम कौमुन ला याक़िलून, ये वो कौम है जिनको अकल नहीं, यानी बेवकूफ है ये लोग। कुरान, अब जिसको अकल नहीं होता है उसको क्या कहा जाता है? जिसको अकल होता है उसको अकलमंद कहा जाता है, जिनको अकल नहीं होता उनको बेवकूफ कहा जाता है। क्या आपको पता अकल नहीं है, समझ नहीं आपके पास, बेवकूफ कहा जाता है। अल्लाह ताला ने कहा यहाँ पे कि बेवकूफों की पहचान है, यानी मुनाफिकीन, वो भी एक तबका है जो इस तरह की चीजों को मजाक उड़ाता है या इसके इनकार करने वाले। तो यहाँ पे अल्लाह ताला ने जब ऊपर वाली आयत नंबर 57 में कहा कि ऐसे लोगों को अपना दोस्त ना बनाओ, चाहे वो अहले किताब में से जो तुमसे पहले थे या कुफार और मुशरिकीन में से हो जो तुमसे पहले तुम्हारे बात किया, तुम्हारे दरमियान हो, तो वो तुम्हारे दीन का मजाक उड़ाते हैं। दीन का जिक्र आया, दीन में सारी चीजें हैं, नमाज भी है, रोजा भी है, हज भी है, ज़कात भी है, बहुत सारी चीजें हैं दीन के अंदर। लेकिन बाद वाली आयत में अल्लाह ने पूरे दीन में एक इबादत का जिक्र किया, वो क्या है? नमाज। इससे ये भी दर्श मिलता है कि हमारी जिंदगी में नमाज का कितना फायदा है, यानी हमारा नमाजी होना कितना जरूरी है, कितना जरूरी है हमारा नमाजी होना। और अगर हम बेनमाजी हैं तो कितने नुकसानात है, इस चीज को हमें समझना होगा कि अल्लाह ने यहाँ तक कह दिया कि लोग बेवकूफ लोग हैं। जब उनको आप नमाज की दावत देंगे ना तो उसको हंसी मजाक समझते हैं। मजाक का मतलब क्या हो? जैसे आप सीरियस है, ईशा की अज़ान हो गई, दोस्त अहबाब के दरमियान मौजूद है, चलिए मैं नमाज पढ़ते, आइए ना आइए, मजाक है, वो उसको सीरियस नहीं ले रहे, वो मजाक है। सीरियस का मतलब क्या हुआ? सीरियस का मतलब क्या हुआ? आप जहाँ बैठे हटी वहाँ जमीन धंसते हुए दौड़ भागेंगे, वहां से हम जमीन धंस जाएगी तो हम अंदर चले जाएंगे, वो सीरियस हो गया, वहां से निकलिए, जमीन फटने वाली है।
फौरन वहां से भागेंगे हम लोग, उस जगह को चेंज कर देंगे। जैसे जलजला होता है, जलजला आता है तो कोई एक जगह नहीं आता, लेकिन हर आदमी जगह क्यों भागता है? शायद जहां वो खड़ा वहां ना आ जाए, वहां जमीन ना धंस जाए। हर आदमी की यही सोच होती है, उधर वाला आपकी तरफ भाग रहा है, आप उसकी तरफ भाग रहे हैं, दोनों की सेम सोच है कि जहां हम दोनों खड़े वही ना धंस जाए। भगदड़ हो जाती है, वो सीरियस हो जाते हैं, जमीन हिल जाती है। लेकिन इस तरह की चीजों में कि चलिए आप आइए, आइए ना होकर आइए, हमें यहीं पे है, क्या है मजाक है? हम नहीं मानते मजाक, लेकिन अल्लाह मानता है। हम मजाक नहीं मानते, अल्लाह मानता है कि किसी ने आपको नमाज की दावत दी, एक ऐसी दावत जो एक बंदे को उसके रब से करीब करती है, एक ऐसी चीज जो कल क़यामत के दिन नूर की शक्ल में होगी, नमाज उसके लिए जो गवाही देगी अल्लाह के सामने कि अल्लाह ये हमारी हिफाजत करता था, इसको कायम करता था, और उसको हम मजाक बना के रखे हुए। चलिए ना आप आओ कराइए ना, ये क्या है? अल्लाह ने कहा कि ये बेवकूफ लोग, ये ऐसी कौम है जिसको अकल नहीं। तो अकलमंदी क्या है? नमाज को कायम करना, उसके वक्त पर पढ़ना। बेवकूफी क्या है? कि नमाज को छोड़ देना। उसके बाद आयत नंबर 60 अल्लाह ने कहा, कुल ऐ नबी कह दीजिए, हल उनब्बिउकुम बिशर्रिन मिन ज़ालिका मसूबतन इंदल्लाह, क्या मैं तुमको एक ऐसे तबके के बारे में खबर ना दूं जो अल्लाह ताला के नजदीक अजर के एतबार से बहुत बुरा है। एक तबके का जिक्र अल्लाह ने अल्लाह के रसूल से दिलवाया। कुल ऐ नबी आप कह दीजिए, किनसे कहेंगे नबी? अपने सहाबा से जो उनके दरमियान मौजूद थे। अच्छा 59 छोड़ लेना। हाँ, आयत नंबर 59 अल्लाह ने कहा, कुल या अहलल किताब हल तनकिमूना मिन्ना इल्ला अन आमन्ना बिल्लाहि व मा उनज़िला इलैना व मा उनज़िला मिन क़ब्ल। देखिए यहाँ पर भी अल्लाह ताला ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि ऐ नबी आप अहले किताब से कहिए। अहले किताब से मुराद यहूद व नसारा, नसरानी ईसाई को कहते हैं, नसरानी भी कहते हैं, ईसाई भी कहते हैं। कुल ऐ नबी कह दीजिए, या अहले किताब, ऐ अहले किताब। अहले किताब इसलिए कहते हैं कि जो आसमानी किताबें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान की शक्ल में नाजिल हुई, उनके ऊपर भी आसमानी किताब नाजिल हुई थी, यानी मूसा अलैहिस्सलाम के ऊपर तौरात और ईसा अलैहिस्सलाम के ऊपर इंजील, और एक किताब जबूर दाऊद अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई थी, तो वो कौम नहीं रही। अल्लाह ने कहा, नबी कह दीजिए, ऐ अहले किताब, ऐ अहले किताब, हल तनकिमूना मिन्ना, तुम हमसे इंतकाम इसलिए लेते हो, तुम हमसे नफरत इसलिए करते हो, तुम हमसे दुश्मनी इसलिए करते हो ना, किस लिए? इल्ला अन आमन्ना बिल्लाह, कि हम अल्लाह पर ईमान लाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अहले किताब की दुश्मनी हम मुसलमानों से बहुत सारी चीजों की वजह से है। तो एक चीज ये भी कि हम अल्लाह पर ईमान लाते हैं, इस पर भी अहले किताब हमसे राजी नहीं है, समझ रहे? इस पर भी अहले किताब हमसे खुश नहीं है, वो दिल से राजी नहीं कब अल्लाह पर ईमान लाते हैं। हालांकि वो आपके लिए बहुत सी चीजें प्रोवाइड करेंगे, आपके लिए इंतजाम करेंगे, लेकिन वो एक साजिश है कि किसी तरीके से आपको अच्छा बनकर आपके दिल में जगह और घर बनाकर खींच कर ले आपके दिल में। अल्लाह ने कहा कि ऐ नबी आप कहिए कि अहले किताब, क्या तुम हमसे इस वजह से भी दुश्मनी करते हो? अन आमना बिल्लाह, कि हम अल्लाह पर ईमान लाते हैं, वमा उनजिला इलैना, और जो कुछ हमारे ऊपर नाजिल किया गया उस पर ईमान लाते हैं, वमा उनजिला मिन क़ब्ल, और जो इससे पहले नाजिल किया उस पर भी ईमान लाते हैं। कुरान से पहले तौरात नाजिल हुआ ना, हम ईमान लाते कि नहीं लाते? अमल नहीं करेंगे, ईमान है कि नहीं हमारा कि तौरात और इंजील अल्लाह की किताब है जो उन्होंने अपने पैगंबरों पर नाजिल किया। अमल कुरान पे होगा, ईमान के साथ साथ अमल किस पर होगा? कुरान पर होगा। इसलिए कि हम इससे पहले की चीजों पर जो नाजिल किया उस पर ईमान लाते हैं। व अन्ना अक्सरकुम फासिकून, जबकि तुम में अक्सर फासिक है। ये अहले किताब की बात हो रही है, अल्लाह ने अल्लाह के नबी से कहलवाया कि आप कहिए कि अक्सर तुम में लोग फासिक, यानी कुछ लोग हैं उसमें अच्छे, जैसे अब्दुल्लाह इब्न सलाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और 8 सहाबा जो यहूदियों में से निकल कर मदीना के अंदर मुसलमान हुए। जो हदीस की किताबों में है कि 8 लोग थे जो यहूद में से थे। उस वक्त जो अल्लाह के नबी हिजरत करके मदीना गए तो उस वक्त यहूदी थे वहां मदीना के अंदर, आपके इंतकाल के वक्त मौजूद थे यहूदी, तभी ना अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौत में थे और आपने कहा लान अल्लाह यहूद व नसारा, अल्लाह ताला यहूद व नसारा पर लानत करे। इत्तखज़ा कुबूर अंबियाहुम मसाजिद, कि उन्होंने अपने अंबिया की कब्रों को मसाजिद बना लिया। आप मरजुल मौत में है और ये बद्दुआ आपके मुंह से निकल रहा है कि अल्लाह ताला यहूद व नसारा पर लानत करे कि उन्होंने अपने नबियों के कब्रों को मस्जिद सजदागाह बना लिया, सजदागाह बना लिया। तो ये इसलिए कहा कि तुम्हें कि अक्सर फासिक, क्योंकि 8 लोग थे जो मुसलमान हो गए थे, सहाबी रसूल कहना है, उनमें एक अब्दुल्लाह इब्न सलाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु थे जो कि उस वक्त यहूदियों के बहुत बड़े आलिम थे। बाद में अल्लाह ने उनको हिदायत की तौफीक दी। उसके बाद अल्लाह ने कहा, कुल ऐ नबी कह दीजिए, हल उनब्बिउकुम,
बिशर्र मिन ज़ालिका मसूबतन इंदल्लाह, अल्लाह के नजदीक अजर के एतबार से, बुरे अजर के एतबार से क्या मैं तुमको खबर ना दूं? खबर दे रहे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि एक होता है अल्लाह के नजदीक सवाब के एतबार से बेहतर वो लोग होते हैं जो मुमिन होते हैं, जो मुत्तकी होते हैं, जो मुजाहिद होते हैं, जो अल्लाह के रास्ते में फी सबीलिल्लाह खर्च करने वाले होते हैं। एक सवाब के एतबार से अल्लाह की कुर्बत होती है, और एक बुरे अजर के एतबार से बुरे लोग कौन होते हैं, यानी अजर भी होगा तो बुरा होगा, अच्छा नहीं होगा। वो कौन लोग हैं? मन लानहुल्लाह, जिस पर अल्लाह की लानत हो, वह गज़िब अलैहि, और जिस पर अल्लाह गजबनाक हुआ, गुस्सा हुआ। यहां देखें दो चीजें अल्लाह ने बयान की, एक लानत की और एक गुस्से की। और जाहिर सी बात है कि ये लोग यहूद नसारा ही थे, उन्हीं के बारे में जिक्र चल रहा है, अहले किताब की ही तस्करा चल रहा है कि ये लोग कौन थे? अहले किताब ही थे। क्या हुआ अल्लाह का उनके ऊपर? बुरे अजर के एतबार से अल्लाह के नजदीक, ए नबी क्या मैं खबर दे दीजिए कि क्या मैं तुमको खबर ना दूं? सहाबा से अल्लाह के रसूल ने कहा क्या मैं तुमको खबर ना दूं कि अल्लाह के नजदीक बुरे अजर के एतबार से कौन लोग हैं? कौन? मन लानहुल्लाह, वो आदमी, वो शख्स, वो तबका जिस पर अल्लाह की लानत हुई, वो गज़िब अलैहि, और दूसरा ये कि अल्लाह ताला उस पर गजबनाक भी हुआ। एक वो तो लानत हुआ, एक मलऊन कौम कह रहे हैं, इस कौम पर अल्लाह की लानत है। एक ये कि लानत के साथ अल्लाह गुस्सा भी है उस कौम से, अल्लाह उससे राजी नहीं है। और अभी तमहीद में मैंने बात बयान की, सूरह अनआम आयत नंबर 69 का तस्करा मैंने किया कि अहले किताब की एक जमात तुमको गुमराह करना चाहती है। मैंने अभी उसका जिक्र किया, इसलिए जिक्र किया कि उस आयत का ताल्लुक इस आयत से डायरेक्ट है। यहां अल्लाह कह रहा है अल्लाह के नबी की जुबानी कि ए मोहम्मद आप बतलाइए क्या मैं तुमको ऐसे लोगों के बारे में खबर ना दूं जो अल्लाह के नबी बुरे लोग हैं? एक वो है जिन पर अल्लाह ने लानत किया और उन पर गुस्सा हुआ। तो अल्लाह ने किन पर लानत की? यहूद नसारा पे। अल्लाह किस पर गुस्सा हुआ? यहूद नसारा से। और यहूद नसारा ही की एक जमात है जो मुसलमानों को चाहती है गुमराह कर दें, और बहुत सारी चीजें यहूद नसारा की हम अपने अंदर शामिल किए हुए हैं। मिसाल के तौर पर मैंने कहा बर्थडे का जिक्र किया, अल्लाह के रसूल ने अपने नाती नवासे हसन हुसैन का बर्थडे नहीं बनाया, जबकि अल्लाह के रसूल सबसे ज्यादा मोहब्बत करते थे। यहां तक अल्लाह रसूल ने कहा कि जो इनसे मोहब्बत करेगा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उससे मोहब्बत करेंगे, और जो इनसे नफरत करेगा मैं उससे नफरत करूंगा। तो आपको अपने नवासों से मोहब्बत थी ना, तो बर्थडे क्यों नहीं मनाया आपने? मनाना चाहिए था। हम कहां से मना रहे हैं? हम ये चीजें ले रहे हैं यहूद और नसारा से, ऐसी कौम से ले रहे हैं जिस पर अल्लाह की लानत है, जिस पर अल्लाह की लानत है। शादी की सालगिरह कहां से ले रहे हैं? मैंने अभी जिक्र किया खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा का कि 25 साल आपकी बीवी थी हज़रत खदीजा, जब अल्लाह के रसूल से इंतकाल हुआ, अल्लाह शादी हुई तो अल्लाह के रसूल की उम्र 25 साल थी, और जब खदीजा का इंतकाल हुआ तो अल्लाह के रसूल की उम्र 50 साल थी। 25 साल अज़वाजी जिंदगी इन लोगों के लिए। तो क्या अल्लाह के रसूल हज़रत खदीजा से मोहब्बत नहीं करते थे? करते थे ना। आपने मनाया एनिवर्सरी, एक्सक्यूज में नहीं जाएंगे क्या हुआ इससे बीवी थोड़ा खुश हो जाती है, क्या हुआ थोड़ा सी दिल लगी हो जाती है, नहीं, बात वो नहीं है। इस्लाम का मतलब ये हुआ कि हमारी मर्जी नहीं चलेगी। मुसलमान क्यों कहलाते अपने आप को? क्योंकि हम अल्लाह के कानून के पाबंद हैं, हम अल्लाह के हुक्म के पाबंद हैं। हमारी अपनी कोई मर्जी नहीं चलेगी। हमारी मर्जी कब चलेगी? जन्नत में, जब अल्लाह जन्नत दे देगा। जो कुछ खाओ पियो, जो करना है करते हो जाओ, वहां कोई रोक टोक नहीं होगी, जो मन करेगा करेंगे, बिल्कुल हम आजाद होंगे। लेकिन अभी इंडिपेंडेंट नहीं है हम लोग। तो ये यहूद नसारा के बारे में अल्लाह कह रहा है कि अल्लाह उन पर लानत, अल्लाह ने एक तो उन पर लानत की, और ये बुरे अजर के एतबार से अल्लाह के करीब है, बुरे अजर की वजह से अल्लाह गजबनाक हुआ। अब उनकी कितनी सारी चीज है यहूद नसारा की हम अपने शामिल किए हुए हैं। ये तो दो चीजें मैंने मोटी मोटी मिसाल दी, जो छोटा मुसलमान तबका हो, अमीर तबका हो या गरीब तबका हो, सब इसमें मुलविस है, इन्वॉल्व है। कितने रुपए हम खर्च कर रहे हैं। एक चीज और इसमें मेरे तरफ से दरखास्त है आप लोगों से कि आप लोग इसको स्टडी कीजिए। एक चीज जो देखने को मिल रही है, मैंने अभी तक स्टडी किया नहीं, लेकिन मुझे उसकी बहुत सख्त जरूरत है रिजल्ट की। क्या चीज देखने में आ रहा है? निकाह में एक नई चीज हमने देखने में मैंने नोटिस किया गया है कि आप लोग भी देखे होंगे, जब निकाह हो रहा है लड़का लड़की का, लड़की की तरफ से जब वलीमा जा रहा है, यानी लड़का जब वलीमा कर रहा है, तो लड़की की तरफ से जो लोग जा रहे हैं उसमें एक केक जा रहा है। आप लोगों ने नोटिस किया, जो पहले नहीं था, और मैंने भी नहीं किया, मुझे कराया गया, अल्लाह का शुक्र, अल्लाह ने कराया गया। एक बार जब मैंने नोटिस किया तो मैंने उस लड़की के बाप से, जो मैं करीब के आदमी थे, तो उन्होंने कहा कि मेरी बच्ची का बर्थडे है, तो मैंने मान लिया। हो सकता है ये इस चीज को नहीं माना कि हाँ बर्थडे कर तो ठीक कर, नहीं,
हो सकता है उसी दिन उसी हिसाब से आजकल लोग डेट तारीख रखते हैं कि जब बच्ची पैदा हुई तो उसी दिन निकाह कर दिया जाए या उसी दिन वलीमा कर दिया, अल्लाह आलम बिस्सवाब। लेकिन ये चीज जब मैं 3-4 जगह देखा कि वलीमा के लोग आए हुए हैं और केक बिल्कुल गया, आए हुए जा रहा था, तो ऐसा तो मतलब कि इत्तेफाक कभी कभी होता है ना, हमेशा तो नहीं हो सकता इत्तेफाक। आखिर वहां बर्थडे था तो यहाँ क्या हो रहा है, इस वक्त यहाँ भी बर्थडे होगा। तो हमने लड़की के भाई से पूछा कि अच्छा आपकी बहन की जो वलीमा है आज ही बर्थडे है क्या? बोलना ना आज नहीं। तब दिमाग में बात खटकी क्या है, और हमने 2-3 लोगों से पूछा कि हमने इसकी पुष्टि या तस्दीक नहीं कर रहा हूँ कि सही है। जिन लोगों ने बतलाया वो यही कहा है कि ईसाइयों में ऐसा होता है, जिस दिन उनके यहाँ दावत वलीमा होता है उस दिन केक काटा जाता है, दूल्हा दुल्हन साथ में मिलकर काटते हैं। लेकिन अभी इसकी हम तस्दीक नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमने किताब में भी नहीं पढ़ा है, हमने लोगों से जो पूछा है उनका ही क्या सही बात है। तो मुसलमान कि उनके यहाँ जो निकाह होता है, अगर ये बात सही है तो आप सोचे कि हम कहाँ चलेंगे। एक ऐसी कौम को फॉलो कर रहे हैं जिस पर अल्लाह की लानत है, एक ऐसी कौम की हम पैरवी करें जिस पर अल्लाह गुस्सा हुआ। तो हम तो अदाब को दावत दे रहे फ्री में, आप बहन मुझे मार, हम तो दावत दे रहे हैं। हम ऐसी कौम को फॉलो क्यों नहीं कर रहे जो कौम अल्लाह वाली थी, जो कौम अल्लाह से डरने वाली थी। अब ये चीजें देखने के बाद मुझे बड़ा अफसोस हुआ और अल्लाह से दुआ की कि अल्लाह मुझे इन चीजों से पाक रख, या मेरी नस्लों को इन चीजों से पाक रख। ये बहुत खराब चीज है कि हम लोगों को नसारा की तरफ भी चल रहे हैं कि हमारे जहनों को क्या हो गया है, हमारी समझ को क्या हो गया, हमारी सोच को क्या हो गया, हमारी फिक्र को क्या हो गया, और सबसे पहले हमारी ईमान को क्या हो गया कि अब मुसलमान उन चीजों को माने जो वो लोग करते हैं। और जब अल्लाह कह रहा है कि उन पर अल्लाह की लानत हुई। आप देखिए तीसरी चीज, मन लानहुल्लाह, जिस पर अल्लाह की लानत हुई। अल्लाह के रसूल से अल्लाह ने अल्लाह के रसूल से कहा कुल हल उनब्बिउकुम बिशर्रि मिन ज़ालिका इंदल्लाह, ऐ नबी आप बता दीजिए कि अल्लाह के नजदीक बुरे अजर के एतबार से कौन लोग हैं, क्या मैं खबर ना दूं? हल उनब्बिउकुम, क्या मैं तुमको खबर ना दूं? क्या खबर है? जिस पर अल्लाह की लानत हुई, ये अल्लाह के नजदीक बुरे अजर वाले हैं। वगज़ब अलैहिम, जिस पर अल्लाह गज़बनाक हुआ। वजअल मिनहुल क़िरदता वल खनाज़ीर, और जिनको अल्लाह ने बंदर और सूअर बना दिया। हम ऐसी कौम को फॉलो कर रहे हैं जो सूअर और बंदर हैं। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये अल्लाह कह रहा है। ऐसी कौम को हम माने, बात समझ में आ रही है? गार्जियन कहाँ है? सरपरस्त, सरपरस्त को क्या खबर नहीं कि उनकी लड़की के वलीमे में इस तरह की चीजें हो रही है? अगर खबर नहीं है तो गार्जियन नहीं है, अगर खबर नहीं तो गार्जियन नहीं है, उनको गार्जियन कहलाने का हक नहीं है। जिम्मेदारी ये नहीं कि हमने बच्ची को या बच्चे को पैदा कर दिया, पढ़ा लिखा के शादी किया कर दी, और वो कुछ भी करे हम उसे बेखबर हैं। कुल्लुकुम राई व कुल्लुकुम मसऊल, अल्लाह के रसूल की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस सही मुस्लिम की रिवायत है कि तुम में से हर कोई जिम्मेदार है और हर कोई से उसकी जिम्मेदारी के बारे में सवाल किया जाएगा। अल्लाह कहेगा तुमने लड़की मांगी थी, औलाद मांगा था, हमने दिया, बताओ क्या किया? पूछेगा अल्लाह, अल्लाह पूछेगा। हम सोच रहे कि नहीं नहीं पूछेगा, पूछेगा हमने तुमको दिया था, हमने मांगा, हमने दिया, आप बताओ क्या किए तुम? तो ये नहीं कह सकते कि नहीं अल्लाह उनके दोस्त थे, उसके सहेली लोग फोर्स कर दी। वहां ये सब नहीं चलेगा, दुनिया में चलता है, वहां नहीं चलेगा। अब सोचिए कि हम लोग कितना ईसाइयों के नक्शे कदम पर। शादी ब्याह के माहौल को देखे ना, अब तो पता ही नहीं चलता कि शादी ब्याह, अगर आप जो है वो नाम वाला बोर्ड या प्लेट निकाल दें तो पता ही नहीं चलेगा कि मुसलमान की शादी हो रही है कि गैर मुस्लिम की। आप लिबास देखें औरतों की शादियों में मुसलमानों के, देऊस कहा गया है, देऊस जो अपने घर की लड़कियों में बेहयाई को बर्दाश्त करे, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देऊस कहा है। वो देऊस है जो बर्दाश्त कर रहा है कि उसकी बेटी, उसकी बीवी, उसकी बहन इस तरह के लिबास पोशाक पहने। ये कहा गया है हदीस के अंदर। अब पता लगाना बड़ा मुश्किल है, पता लगाना बड़ा मुश्किल है कि आप ऐसा, आप गैर मुस्लिमों के निकाह में है या अपने कौम मुसलमानों के निकाह में है। टोटल हम यहूद नसारा से सीख रहे हैं, टोटल। और इसको अपडेटेड जिंदगी माना जा रहा है। नहीं, मौलवी लोग अपडेट नहीं होते हैं, वही पुराने ख्यालात, वही पुरानी सोच, वही पुरानी फिक्र। इन लोग चक्कर में रहोगे ना तो हर चीजें खत्म हो जाएगी, वो लोग शादी को मैयत बना देंगे। इस तरह के जुमले कसे जाते हैं। और वो भी अभी आयत आएगी कि अम्र बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर के फरीजे को छोड़ने का अंजाम क्या होता है। अल्लाह ने कहा उन लोगों पर अल्लाह की लानत हुई, अल्लाह पर गजब हुआ जिनको अल्लाह ने बंदर और सुअर बना दिया था। वो आबदत तागूत, जो तागूत की इबादत करते थे। उलाइका शर्रुन मकानन, मकान के एतबार से, जगह के एतबार से बहुत बुरे लोग हैं। लोग शर्रुन मकाना कहा गया है, बहुत बुरे लोग हैं। वह अज़ल्लु अन सवा सबील, और बुरी तरीके से राह रास्ते भटके हुए लोग, राह रास्ते से भटके हुए लोगों के हम पैरवी कैसे कर सकते हैं? सोच रहे हैं हम ऐसे लोगों की पैरवी क्यों करें
जो राह रास्त से भटके हुए हैं। उसके बाद आयत नंबर 61 अल्लाह ने कहा व इज़ा जाऊकुम कालू आमन्ना। अब देखिए यहूद और नसारा के बाद मुनाफिकीन का अल्लाह ने जिक्र किया। व इज़ा जाऊकुम, जब वो तुम्हारे पास आते हैं, कालू तो कहते हैं कि आमन्ना, हम तो ईमान लाए, हम मोमिन हैं, ईमान वाले हैं, हम ईमान लाने वाले हैं। वक़द दखलू बिल कुफ्र व हम कद खरजू बिही। दखला दाखिल होना उर्दू का भी लफ्ज है, खरजू खारिज होना निकलना उर्दू का लफ्ज है। कद दखलू बिल कुफ्र, ये कुफ्र के साथ दाखिल हुए, वहुम कद खरजू भी, और उसी के साथ निकल गए। यानी ये मुसलमान और मोमिन थे ही नहीं, ये तो जुबानी दावे थे। क्यों? वो जब तुम्हारे पास आ रहे तो कह रहे अपने आप को बचाने के लिए, सेव करने के लिए कि देखिए हम तो मुसलमान हैं, हम क्या है, हम तो मुसलमान हैं। लेकिन अल्लाह ने कहा कि दिल में कुफ्र को लेकर दाखिल हुए थे और कुफरी को लेकर निकल गए, कुफर इनके दिल से नहीं निकल सका, यही कुफर के साथ आए, कुफर के साथ चले गए। वल्लाहु आलमु बिमा कानू यक्तुमून, जो कुछ छुपा रहे हैं अल्लाह उसको जानता है, अल्लाह उसको जानता है। कुछ भी अपने दिल में छुपा ले अल्लाह को सब पता है, सब अल्लाह रब्बुल आलमीन को पता है, कोई छुपा नहीं सकता अल्लाह रब्बुल आलमीन से, क्योंकि उसके दिल में जो बातें जो चीजें एक्टिविटी हो रही है वो सब अल्लाह ही करवा रहा है, सब अल्लाह जानता है। कुछ भी कोई छुपा दे और दावे कर दे, अल्लाह सब जानता है। अब देखिए आयत नंबर 62 अल्लाह ने कहा वतरा कसीरा मिनहुम युसारिऊना फिल इस्मि वल उद्वान व अक्लिमुस सुहता लबीसा मा कानू यामलून। ये दो जो आयत है, आयत नंबर 62 और 63 ये दोनों आयत जो है बिल्कुल दौरे हाजिर के ऊपर फिट, बल्कि बोलते ना ऐसा वैसा फिट नहीं, मतलब ऐसे लगाइए फिट हो गया, ऐसे वैसा फिट बिल्कुल आराम से फिट हो गया, परफेक्ट जिसको कहा जाता है। अल्लाह ने कहा वो तरा कसीर मिनहुम, हालांकि बात चली अहले किताब और मुनाफिकों की, आप गौर करेंगे। अल्लाह ने कहा आप उनमें से अक्सर को देखेंगे, कसीर अक्सरियत को, अक्सर लोगों को देखेंगे, युसारिऊना फिल इस्मि वल उद्वान, जो गुनाह के काम में और जुल्म के काम में तेजी से बढ़े हुए हैं, दौड़ रहे हैं। किस काम में? गुनाह के काम में, जुल्म के काम में। आप अक्सर को, किनकी बात हो रही है? अहले किताब की, हम लोगों की बात नहीं हो रही है, उम्मत मोहम्मदिया की, हमको सिर्फ कंपेयर करना है। अहले किताब या मुनाफिकों में से अक्सर को आप देखेंगे, अह नबी आप अक्सरों को देखेंगे दौड़ कर जा रहे किस काम में? गुनाह के काम में और जुल्म के काम में। वह अकली हिमुस्सुहता, और हराम खाने में। लबीसा मा कानू यामलून, बहुत बुरी चीज वो कम कर रहे हैं, जो ये कर रहे हैं बहुत बुरी चीज है। उसके बाद अल्लाह ने क्या कहा आयत नंबर 63 में, लौला यनहाहुमुर रब्बानिय्यून वल अहबारू अन कौलिहिमुल इस्मा वल अक्लिमुस सुहता, क्यों नहीं इनके आबिद और आलिम, उलमा की बात हो रही उनके, अहले किताब की, क्यों नहीं इनके रब्बानी, इनके जो उलमा है, वल अहबार, उनके जो आबिद है, इबादत गुजार लोग हैं, क्यों नहीं उनको मना करते? नहा या नहा का मतलब होता है मना करना, क्यों नहीं उनको मना करते उनके आबिद और आलिम? किस बात से? अन कौलिहिमुल इस्मा, गुनाह के करने से, वो अक्लिमुस सुहता, हराम के खाने से, लबीसा मा कानू यस्नऊन, जो काम कर रहे हैं बहुत बुरा काम कर रहे हैं। यहां देखिए इन दोनों आयत के अंदर एक चीज जो क्या कॉमन है कि अक्सरियत आप देखेंगे कि हराम खाने की तरफ, जुल्म की तरफ, और गुनाह कोई हम डिवाइड ना करें कि चलो छोटा गुनाह कर दी तो ठीक है, वो बड़ा कर रहा है तो खराब है, नहीं, गुनाह होता है, गुनाह होता है। अल्लाह ने कहा कि आप उनमें से अक्सर को देखेंगे जो जुल्म, गुनाह और हराम खाने में दौड़े जा रहे हैं। क्या ऐसा हम में नहीं है? मुसलमानों में हमारी अक्सरियत उधर ही जा रही है। अब देख ले कि हम मुसलमानों की अक्सरियत इसी चीज में, गुनाह में है, हम मुसलमानों की अक्सरियत जुल्म में है, हम मुसलमानों की अक्सरियत हराम खाने में। और अगर आपको अंदाजा ना लगे या लगे कि बात झूठ है, तब मस्जिद उठा के देख ले, बाजार देख ले, मुसलमान की नमाज के टाइम में मस्जिद में ज्यादा है कि बाहर में ज्यादा है? नमाज छोड़ना गुनाह है कि नहीं? कि हम उसको भी हम अपडेट कर दिए और इसको गुनाह से बाहर कर दिए कि नहीं? छूट गया कोई बात नहीं, गुनाह लेकिन नहीं गुनाह है कि नहीं गुनाह? आप प्रैक्टिकल मस्जिदों में जाकर देखिए, अभी ईशा में जाकर पढ़ के देख लीजिए, मुसलमान कहाँ बाहर है और कितने अंदर है। ये तो उनकी बात हो रही है, ये उम्मत मोहम्मदिया की बात नहीं हो रही। लेकिन मोमिन के लिए इशारा काफी है। अगर मोमिन है हम तो हमारे लिए इशारा मिल गया, गरचे अल्लाह उनके बारे में बयान कर रहा, लेकिन हम भी तो उसी में कि हमारे यहाँ भी तो अक्सरियत ऐसी है कि अगर गुनाह के काम में तो फौरन दौड़ भागते हैं, अगर हराम खाने की बात आ जाए तो फौरन दौड़ भागते हैं, इसी तरीके से आ जानी चाहिए। और इसी तरीके से जुल्म और बर्बरियत की बात आ जाए तो फौरन दौड़ जाते हैं।
اب دیکھیں اس کے بعد اللہ نے ان کے علماء سے کہا، تو یہ گرچہ خاص ان کے علماء سے کہا گیا ہے، لیکن اس قوم کے جو علماء اس سے مخاطب ہیں کیا ہے؟ امر بالمعروف کنتم خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف تنہون عن المنکر، تم ایک بہترین امت ہو، تم ایک بہترین امت ہو۔ کیوں بہترین امتیں ہو؟ کیوں اللہ نے ہم کو انی فضلتکم علی العالمین جو کہا تھا بنی اسرائیل کے بارے میں کہ ہم نے تم کو تمام جہان والوں پر فضیلت دے رکھی ہے، پوری دنیا والوں پر، اس کو کینسل کیا اللہ تعالیٰ نے، اور ہمارے بارے میں کہا کنتم خیر امت، تم ایک بہترین امت ہو ہمارے بارے میں الحمدللہ۔ کیوں کہا؟ اللہ نے کہا اخرجت للناس، ہمارا جنم، ہماری پہلا اذان ہو رہی ہے، اذان کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ دوبارہ درس کو شروع کیا جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 63 کے اندر اللہ تعالیٰ نے گرچہ اہل کتاب کے علماء ربانی یا احبار کے بارے میں ذکر کیا، لیکن یہ چیزیں ہم مسلمانوں کے علماء کے لیے بھی ہیں کہ علماء نے جب سے حق بات کہنا چھوڑ دیا۔ امر بالمعروف کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بھلائی کا حکم دینا۔ نہی عن المنکر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ برائی سے روکنا۔ بھلائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا یہ بھی ہماری خصوصیت میں ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر تؤمنون باللہ۔ اللہ نے کہا کہ تم لوگوں کے لیے پیدا کیے ہیں، ہمارا وجود انسانیت کے لیے ہے، تم بھلائی کا حکم دے دو، تم برائی سے روک کے تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ یہ فریضہ گرچہ جو غیر علماء ہے ان کے لیے عمومی ہے، لیکن خصوصی علماء کے لیے ان کے علماء نے کیا کیا؟ اہل کتاب کے علماء نے کہ ان کے مقتدین یا ان کے جو قوم کے لوگ تھے ان کو حرام کھانے دیا، ان کو برائی کرنے دیا، ان کو گناہ پہ گناہ کرنے دیا۔ وہ معاشرے کے اندر، سماج کے اندر برائیوں کو، گناہوں کو، معصیت کو، ظلم کو دیکھتے تھے لیکن بولتے نہیں تھے، وہ بولتے نہیں تھے۔ تو اللہ نے ان پر لعنت کر دی، اللہ ان پہ غصہ ہو گیا، اللہ ان کے چہرے کو بند رسول کی طرح بنا دیا۔ سوال یہ ہے کہ اللہ انصاف کرے گا تو اللہ ایک قوم کے علماء کرے گا، دوسرے قوم کو کیوں نہ کرے؟ کیوں نہ کرے؟ اور اگر یہ بھی مسئلہ مسلمانوں کے اندر ہوا، ہو ہی رہا ہے کہ یہ میں کسی عالم دین پر کوئی انگلی اٹھانے کی ضرورت یا جسارت نہیں کر رہا، لیکن کہیں نہ کہیں حقیقت ہے کہ مساجد سے علماء نے حق بولنا چھوڑ دیا، کہ مسلمانوں نے ظلم کو ثواب سمجھ لیا، گناہ کو نیکی سمجھ لیا، حلال کو حرام سمجھ لیا۔ یہ کیوں؟ کیونکہ علماء ٹائٹ نہیں ہوئے، سخت نہیں ہوئے، انہوں نے اپنے حالات سے سمجھوتا کر لیا کہ اگر میں بول دیتا ہوں تو یہاں سے نکال دیا جاؤں گا تو پھر میرے بال بچے بھوکے مر جائیں گے۔ اگر ایسی سوچ علماء کے اندر ہو جائے تو عام آدمی سوچ لے تو کیا کرے؟ عام آدمی سے سوچ کرے، عام آدمی اسی لیے سوچ کر ایسا کر رہا ہے کہ اگر میں رشوت نہیں لوں گا تو میری نوکری چلی جائے گی، اگر میں یہ نہیں کروں گا تو وہ چلا جائے گا۔ نہیں، ہر دور میں امت کے اندر، قوم کے اندر ایسے لوگوں کی ضرورت ہے جو ساتھ دے امر بالمعروف کے فریضے کو ادا کرنے والوں کی، جو سپورٹ کرے نہیں عن المنکر کے فریضے کو ادا کرنے والوں کی۔ ایسے علماء جب حق بات کہا کرے، جب سچ بولے، تو اگر 10 لوگ ان کے خلاف ہے تو 1 لوگ کھڑے ہونے چاہیے۔ نہیں، انہوں نے کچھ غلط نہیں کہا ہے، جو باتیں انہوں نے کہی صحیح بات کہ آپ کو کیوں برا لگ رہا ہے، اور لگ رہا ہے تو آپ اس کا جائزہ لیجئے، آپ اس پر سوچئے، وچار کیجئے، سر جوڑ کر بیٹھیے کہ اس چیز کو نہ کیا جائے۔ وہ تو آپ کی اصلاح کے لیے بول رہے ہیں، آپ کو ذلیل نہیں کر رہے ہیں، تاکہ آپ اس کو چھوڑ دیں گے تو اللہ آپ سے راضی ہو جائے گا۔ علماء کو اللہ رب العالمین نے یہاں پر ڈانٹ لگائی، کن کے علماء کو؟ یہود و نصارہ کے۔ تو یہ چیزیں ہم مسلمانوں کے لیے بھی ہیں کہ ایسے علماء جب حق بولے ہو، سچ بول رہے ہوں، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ پیچھے سے بولا جائے۔ ہم لوگ میں کیا ہوتا ہے، ایک عالم نے سوچ کر بول دیا کہ چلو بھائی ہمارا کام وہی ہے، ممبر رسول کا یہ حق ایسا ہے، اس وقت کوئی نہیں آیا بچانے کے لیے، پیچھے سے ایک بیکنگ سینٹینس ہمیشہ بولا جاتا ہے، دیکھیے اب یہ سمجھ لیجیے کہ آپ کی روزی روٹی اتنا ہی تھی، اللہ اسے بہتر عطا کرے گا۔ یہ نہیں چلے گا، یہ چیزیں بیکار کی چیز، یہ بزدلوں کی زبانی ہے۔ بزدل لوگ جو ہوتے ہیں نا سامنے کبھی نہیں آتے ہیں، اب وہ لوگ سب سے زیادہ علم بردار بنیں گے کہ ہم لوگ حق کے ساتھ ہیں۔ ہم کیا حق کے ساتھ ہیں؟ ایک عالم دین نے اپنی زندگی پر رسک لے کر سچ بولا تو لوگ اس کے خلاف ہو گئے، کمیٹی خلاف ہو گئے، آپ بولے کہ کیوں بولے؟ معلوم ہے فلاں صاحب کتنا برا لگا ہے، ان کا اچھا خاصا تعاون رہتا ہے یہاں پہ۔ آپ جو عمارت دیکھ رہے 3 منزلہ، 1 منزلہ کے خرچے وہی دیے ہوئے ہیں، تو ڈرپوک لوگ کیا کرتے ہیں، اس وقت سامنے نہیں ہے، پیچھے سے امام صاحب کیا ٹینشن لیتے ہیں، ارے روزی کا مالک تو اللہ تعالیٰ ہے۔ آپ یہ سمجھیے کہ آپ کی روزی روٹی یہاں پر اتنی دن تک تھی، آپ کو ہو سکتا ہے اللہ اس سے اچھا آپ کو نواز دے گا۔ نہیں چاہیے ایسے بیکار کی جملے۔ بزدلوں کی کبھی بھی صحبت اور ان کی کبھی بھی تعاون کو قبول نہ کیا جائے، ورنہ آپ بھی بزدل ہو جائیں گے، آپ بھی بزدل ہو جائیں گے۔
अल्लाह के रसूल समझौता कर लेते, ऑफर तो हुआ था कि अबू तालिब समझाओ उसको, मक्का की जितनी दौलत है, जितनी दौलत चाहते उसको दे दिया जाएगा, मक्के की सबसे खूबसूरत लड़की से उसका निकाह करवा दिया जाएगा, कहो अपने भतीजे से कि अपने दीन से फिर जाए और इस तरह की कोशिश ना करें। अल्लाह के रसूल के जो सहाबा थे वो सपोर्टिंग में नहीं आए, कर तो ठीक ही है, अच्छा मौका है, चलिए क्या जरूरत है मार खाने का पिटने का, हल्का फुल्का लेकर अपना साइड से काम शुरू कर देते। नहीं, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे कायद थे, उन्होंने अपने चाचा से कहा था कि चाचा जाके कह देना उन लोगों से कि अगर मोहम्मद के एक हाथ पे चांद एक हाथ पे सूरज रख देंगे तो अपने दिन से पीछे नहीं हटेंगे। या साहबा में कोई आए, अबू बकर सिद्दीक आए कि अल्लाह के रसूल आप क्यों जान जोखिम में डाले हुए हैं, आप भी फंसिएगा, हमको भी फंसाइएगा। कुर्बानी का जज्बा हमारे कौम से खत्म हो गया, कोई मार नहीं खाना चाहता, कोई सजा नहीं भुगतना चाहता हक के लिए, हर आदमी सेफ लाइन में चल रहा है। तो अल्लाह ने कौम को जलील कर दिया। आज कोई नहीं आ रहा है जो हमारे हमनवा बनने की कोशिश, लीडर बनने की कोशिश करे, वो भी सेफ जोन में रहकर कोशिश कर रहे हैं, तो फ्रंट पे नहीं आएंगे। क्यों? हमने क्या किया? हम दूसरों की तरफ कुर्बानी के लिए देख रहे हैं, हमने क्या किया? ये उलमा को अल्लाह ने फटकार लगाई कि क्यों नहीं उनके उलमा ने और उनके आबिद जाहिद लोगों ने उन लोगों को मना किया बुरे काम से, गुनाह से और हराम खाने से, क्यों नहीं मना किया? इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम अम्र बिल मारूफ का फरीजा अंजाम दे रहे, भलाई किसी के दर्स भलाई के काम हम कर रहे हैं, अल्लाह से खुश होगा। ये एक पार्ट हुआ, ये सच्चाई का, इस सिक्के का एक रूप हुआ कि हम भलाई का हुक्म देते हैं, वो नहीं अनिल मुनकर वो और बुराई से रोकना, ये कहा हमने किया, ये पार्ट हम छोड़ रहे हैं। अगर अम्र बिल मारूफ पर अल्लाह की मदद और नुसरत है तो नहीं अनिल मुनकर छोड़ने पर अल्लाह का अजाब भी, अल्लाह का अजाब भी। दोनों चीजें मिलकर एक सिक्का कहलाएगा, एक रुख से एक सिक्का नहीं होता। ये उनके बारे में है तो हमें अपने उलमा की फिक्र करनी चाहिए कि जो उलमा हक बोलते हैं, सच बोलते हैं, उनकी तरफ से हमेशा खड़े रहे, खड़े रहे। ये हम लोगों के लिए बोलते हैं, ये उलमा है जो बड़ी मुश्किल से तैयार होते हैं, इनका ऊंचा मकाम है, इनका ऊंचा मर्तबा है। ये अगर हक गोई पर है तो हम इनको सपोर्ट करें, अगर वो हक गोई नहीं बोले तो हम उनको मुखालफत करें। ये भी ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ आलिम हैं तो आप कुछ भी कर सकते हैं, आप जो मन में करते रहिए और आपको कोई बोले नहीं। ये बिल्कुल हम कभी इस चीज के सोच के जहनियत के नहीं रहे कि अगर आलिम गलती भी कर रहा है तो उसको पकड़ने का मतलब उसको जल्दी कर दिया, उसका तरीका होता है। लेकिन जो बात अल्लाह ने यहाँ बयान की कि अगर अल्लाह ने यहूद नसारा पर लानत किया, उस पर गुस्सा हुआ, उनको बंदर और सूअर का चेहरा बनाया, तो ये चीजें थी जिसका अल्लाह ने यहाँ पर जिक्र किया है कि वो गुनाह के काम करते थे, वो जुल्म के काम करते थे, वो हराम खाते थे। फिर अल्लाह ने उलमा को टारगेट किया, उनके उलमा को। क्यों नहीं तुम लोगों ने मना किया? मना करना चाहिए था। ये सारी चीजों की वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि अल्लाह ने पर लानत कर दी। ये चीजें बहुत बड़ी बड़ी दर्स है और नसीहत आमोज भी है कि ऐसी चीजों के लिए हम कमर कस लें। अगर हमने कुर्बानी से इज्तनाब किया तो याद रखें हमारा कोई तारीख नहीं है, हमारी कोई हिस्ट्री नहीं है, दुनिया हमें भूल जाएगी, ऐसे ही भूल जाती है। लेकिन तारीख के वर्क में हम चाहते हैं वर्क गर्दानी को हमारे मरने के बाद तो हमें कुर्बानी देना है। आज दिन की जो काम को देखेगा, जितना सुस्त रवि से दीन का काम हो रहा है वो बिल्कुल ना के बराबर चल रहा है। इसको हम ना कहेंगे, 0 पॉइंट भी नहीं है, 0.0 भी नहीं है। काम को स्पीड में लाना है, तेजी लाना है। और जब आप दीन का काम करेंगे तो क्या हुआ अल्लाह के नबी के साथ, क्या हुआ बकर सिद्दीक के साथ, क्या हुआ उमर फारूक के साथ? क्या नहीं हुआ, मक्का छोड़ना पड़ा। ऐसा इन लोगों ने मक्का छोड़ा कि मक्का इनके लिए बेगाना बन गया। अल्लाह के रसूल की पैदाइश मक्के में हुई, ऐसा मक्का छोड़े कि आपका इंतकाल मदीने के अंदर हुआ और कब्र भी मदीने ही के अंदर है। वो आपके आबाई मकान छूट ही गया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, फिर वो मदीना के नहीं हुए। जितने सहाबा हिजरत करके गए वो सब मदीना रह गए, जबकि उनका आबाई मकान मक्का था। कितनी बड़ी बड़ी कुर्बानियां उन लोगों ने पेश की। एक कुर्बानी में जिक्र करो अब्दुर्रहमान बिन औफ के बारे में। जो लोग जुमा में गए होंगे तो सुने होंगे, क्योंकि अभी जुमा में वहां पर अशरे मुबशरा जो सहाबा थे उन्हीं की सीरत चल रही है। 2 हफ्ता पहले अब्दुर्रहमान बिन औफ का चला, पिछले 2 हफ्ता से साद बिन नबी वकास का, और अभी जुबैर बिन अवाम का इंशाअल्लाह ताला अगले हफ्ता बयान किया जाएगा। अब्दुर्रहमान बिन औफ जब मुसलमान हुए, जब मक्का से निकलने लगे, तो सबसे पहले उनके खानदान के लोग आ गए, भाई कहाँ जा रहे हो? उन्होंने कहा कि मैं तो मोहम्मद के दिन पर, अबू बकर सिद्दीक की दावत पर मुसलमान हुए थे, मैं तो मोहम्मद के दिन पर ईमान ले आया हूँ, मदीना जा रहा हूँ हिजरत करके। तो औलाद को क्यों ले रहे हो? तो हमारी नस्ल है। उनके घर के लोग, खानदान के लोग आ गए, अपने बाप दादा, तो औलाद को छोड़ दो, तुम जाओ, तुमको मरना है मरो, तुम गड़ाओ कहीं पर, हमको उससे क्या मतलब है? जो लेके जा रहे हो ना बेटा को, बेटी को, वो हमारे कबीले के नस्ल है, छोड़ो उसको, उसको छीन लीजिए। फिर कुछ देर आगे बढ़े तो उनके ससुराल के लोग आ गए, भाई हमारी बेटी को कहाँ ले जा रहे हो? उनकी बीवी थी,
बोले कि हम लोग जा रहे हैं। हम लोग मत बोलो, हम लोग नहीं, तुम बहका दियो मेरी बेटी को। क्यों बोलो हम लोग नहीं, बहका दियो, छोड़ो उसको, वो तो नादान है, बच्ची है, ना समझ है। तुम जाओ जलो आग में, हमको उसे करने देना, लेकिन मेरी बेटी को छोड़ो। बेटी बीबी को भी छीन लिया किया। थोड़ी देर आगे बढ़े तो भाई लोग आ गए, भाई आप कहाँ जा रही, घोड़ा उठ तो अब्बा का है, तो अब्बा में सबका तो हक है, आप अकेले के थोड़ी ना मालिक है। तो जब बंटवारा हो सब भाई बहन का मिलेगा, आप अकेले कैसे डिसाइड कर लिए कि हम तो घोड़ा ले लेते हैं, उसको कुछ सामान रख लेते हैं सफर के और ऊँट पे बैठ के, नहीं नहीं तो हम बाप का है, छोड़ो उसको। छूट गया, पैदल चले गए। अब्दुर्रहमान बिन औफ खानदानी अमीर थे, वो कभी गुर्बत में नहीं पले थे, गरीबी नहीं देखे थे, गरीबी क्या होता है। और मदीने के अंदर जब कारोबार शुरू किया ना, वो कारोबार मदीने का बाजार यहूदियों के कंट्रोल में था, अब्दुर्रहमान बिन औफ के कंट्रोल में आ गया। इतनी पैसा, इतनी मालदारी, उस्मान गनी से भी ज्यादा मालदार था अब्दुर्रहमान बिन औफ, इतना पैसा था। चले गए, पूरे धूल लगे हुए चेहरे पर, बालों पर, बदन पर, जिस्म पर। अल्लाह के रसूल मदीना पहुंच चुके थे। एक साहबी रसूल दौड़ के गए अल्लाह के रसूल के पास, के अल्लाह के रसूल अब्दुर्रहमान आए, खबर दिया कि अब्दुर्रहमान आए हुए, पहुंच चुके थे मदीना। तो उन्होंने कहा कि अल्लाह की बड़ी ज्यादती की मक्का वालों ने, हाँ, उनके बाल बच्चों को छीन लिया, उनकी बीवी को छीन लिया, उनके सारे सामान को उनसे छीन लिया, कुछ नहीं बचा उनके पास। अल्लाह के रसूल ने कहा कि अब्दुर्रहमान ईमान बचा के लाए। इतना बड़ा जुमला अल्लाह के रसूल ने कहा, अब्दुर्रहमान ईमान बचा के लाए हैं, समझ लेना, ये अब्दुर्रहमान की फजीलत है। कुर्बानी दिया उन्होंने, अपने लगते जिगर, हमारी बच्ची को कुछ हो जाता है, बदन से जान निकल जाता है, क्या हो गया, उसको कैसे ठीक करें, उन्होंने कैसे छोड़ दिया। तो एक बात मैं हमेशा कहता हूँ, आज वो कुर्बानी देने की जरूरत नहीं है, वो तलवार लेकर जिहाद वाला। आज कुर्बानी देना है पैसे की कुर्बानी, आज कुर्बानी देना नफ्स की कुर्बानी, आज कुर्बानी देना है कि अल्लाह के दीन के लिए हम क्या कर सकते हैं। सब सेटअप बिल्कुल रेडी है, कुछ करना नहीं है, ना जिहाद करना है, ना तलवार निकालना है, ना बम गोली निकालना, कुछ नहीं करना है। बाप भी मुसलमान है, माँ भी मुसलमान है, दादा भी मुसलमान थे, दादी भी मुसलमान है, परदादा लकड़दादा सब मुसलमान है, टोटल ही मुसलमान है, पूरा एक लंबा बैकग्राउंड है। उन लोगों का नहीं था, उन लोगों का नहीं था। आज मुसलमान कौम कुर्बानी नहीं देना चाहती। उसकी एक मिसाल देख लीजिए, उल्टी मस्जिद की जो ढलाई सेकंड फ्लोर की हुई, अभी जनवरी में 2 साल हो जाएगा, अभी तो कंप्लीट नहीं हुआ। कितना कमजोर ईमान, कितनी पैसे से मोहब्बत, नहीं बन पा रहा है। ऐसा नहीं कि पैसे वाले नहीं, उल्टी हो ही नहीं रहा, मोहब्बत हो गई है, पैसे से दे देंगे तो घट जाएगा। अरे किसको देंगे, अल्लाह को दे रहे हैं। वो घर किसका है, हमारे और आपके घरों से बेहतर घर है। वो सुकून जो हमको अपने घर में नहीं मिलेगा, वहां मिलेगा। नहीं निकल रहा पैसा, क्यों? ये कौम कुर्बानी से भाग रही है। कुर्बानी हमसे नहीं होगा, कुर्बानी हम नहीं दे सकते। समझ रही है, बड़े तल्ख अल्फाज है। शायद अल्लाह हमारे दिल में ये चीजें पैदा कर दे, जज्बा हमारे अंदर पैदा हो जाए तो कुर्बानी देने से कौमें बनती है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह आलमीन तो हम तमाम लोगों की हाजिरी को कबूल फरमा ले, हमें हक बस कहने, हक बस सुनने और उस पर अमल की तौफीक अता फरमा। आज का दर्स यहीं पर आयत नंबर 63 तक मुकम्मल हुआ। अगर कोई सवाल हो ऑनलाइन ऑफलाइन तो आप लोग पूछ सकते हैं। सर इमामों की मुखालफत भी इमाम से मोस्टली ऐसी जगहों पे होती है जहाँ पे लोग जो है दीन से या दीन के मुताले से इतना उनकी ट्रेनिंग जो है नहीं हुई है। तो कहीं ना कहीं इमाम साहब इसके लिए तो इमाम भी तो जिम्मेदार है कि आप जो है दीन को समझने और पढ़ने पे जोर नहीं देते और अचानक से इस दिन आकर कोई चीज़ बोल जाते हैं। तो देखिए, ये जो मसला है ना कि जैसे इमाम की जो मुखालफत, जैसे मसला भी आज है, तो उलमा के यहूद नसारा के उलमा की बात आई, इस चीज़ से सबसे ज़्यादा जूझ तो हम उम्मत मुस्लिमा है, इस चीज़ से ज़्यादा जूझ रहे हैं। हालांकि ये हर जगह की बात नहीं है, ये खासकर बड़े सगीर हिंद पाक और बांग्लादेश नेपाल वगैरह का मामला है। देखिए, इसमें जो सवाल इनका है वो भी एक बहुत जेन्युइन चीज़ है, गलत नहीं है कि अगर उलमा की मुखालफत हो रही है और कोई उलमा के बचाव में नहीं आ रहा है तो इसकी एक वजह तो उलमा भी है। तो इसको पहले समझना होगा बारीकी से। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ होती है मौका और महल, और एक है माहौल। एक जगह मुसलमानों की आबादी बसी, नई आबादी, और वहाँ एक मस्जिद बना, तो एकदम बिल्कुल न्यूली है ना, एकदम नया है। अब वहाँ पे जैसी मस्जिद का क़याम होता है तो क़याम होने के साथ साथ जो भी मस्जिद के जिम्मेदारान हैं या आलिमी को ले लीजिए, या आलिम है, तो ये उनकी जिम्मेदारी बनती है कि यहाँ के लोगों को, खासकर जो नौजवान नस्ल है, नई नस्ल है, उनको दीन से आरास्ता पैरास्ता किया जाए, है ना। एक चीज़ ये है, एक ऐसा माहौल बनाया जाए कि उनके अंदर जज्बा पैदा हो दीन सीखने का, क्योंकि दीन एक बहुत बड़ी चीज़ है कि दीन जब किसी इंसान के अंदर आ जाता है तो उसके अंदर सबसे बड़ी चीज़ जो पाई जाती है वो अल्लाह का खौफ। वो कोई भी काम करता है डरता है। अब जैसे उलमा की मुखालफत तो डरेगा, अगर
हमने गलत निकाल दिया किसी आलिम को या साजिश कर दी, तो कल अल्लाह की जवाबदेही होगी। ये डर पैदा होगा दिल से, वो डरेगा पहले, उसके बाद कोई काम करेगा। तो ये भी एक चीज़ है कि उलमा को चाहिए, जो आलिम दीन है, कि वो उस पर काम करे। लेकिन इस काम को करने के लिए उलमा के जहन को ताज़ा रखना होगा। और ताज़ा कैसे होगा? अच्छी खासी सैलरी से। अगर हम उलमा को मामूली तनख्वाह देंगे तो वो तो टेंशन रहेगा घर में कि राशन आया कि नहीं आया, सब्जी आई कि नहीं आई, पैसा बचा कि नहीं बचा, बच्ची बीमार है दवा आया कि नहीं आया, वो उधर ध्यान देगा कि दावत काम पे ध्यान देगा। कोई भी काम करेंगे, गवर्नमेंट वाले सरकार तनख्वाह क्यों ज़्यादा देती है? ताकि हमारा स्टाफ ये चीज़ का टेंशन भूल जाए, पैसा वाला, और पूरा काम का फोकस उसके का ड्यूटी पर। गवर्नमेंट आज तनख्वाह कम कर देगी, हम तिमिला जाएंगे। घर देखे कि ये देखे, अब्बा को देखे कि अम्मी को देखे, भतीजे को देखे कि भतीजी को देखे। तो ये एक बहुत बड़ी रीजन है तनख्वाह, अच्छी तनख्वाह। ठीक है, ये एक सरकारी स्कीम। लेकिन क्या मुसलमानों को अल्लाह ने इस लायक नहीं बनाया? आप देखिए मुसलमान नाच गाने पे करोड़ों खर्च कर रहे हैं, कोई सेलिब्रिटीज को बुलाने के लिए पैसे की पूरी रेल पे लगा दे रहे हैं। ऐसा नहीं, ये नहीं कहा जा सकता मुसलमानों को पैसा नहीं है। बहुत सारे तरीके, एक तरीका ये भी है, बहुत एक मस्जिद हमने ये भी देखा साकिब भाई कि मस्जिद के जो रसीद होते हैं वो इमाम को दे दिया गया। तो देखिए हम लोग उतने जानकार नहीं है, आप चंदा कीजिए, जितना कर लीजिए आप करिए, आप ही चलाइए। तो उसको एक चीज अच्छा ये लगा कि लोगों ने भरोसा किया, तो वो 15 दिन चंदा पे मेहनत करा ताकि उसका तनख्वाह हो जाए 1 महीने का, और 15 दिन दावा दिखा के मेहनत कर रहा है, उसका बैलेंस हो गया जितना चाहिए, तो जरूरत कितना है अपना काम में लगे हुए। तो बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें, सिर्फ हम लोगों में पढ़े लिखे की कमी नहीं है। और खासकर हमारे कौम के अंदर अकाउंट्स के बहुत सारे लोग हैं, आप उनसे रब्ता करेंगे, आपको अच्छी अच्छी आइडिया और दिमाग देंगे, उनसे काम हो सकता है, हम उनसे काम ले सकते हैं। तो इनकी एक वजह जेन्युइन है कि उलमा ही ने ऐसा काम माहौल बना दिया, इसलिए उनकी मुखालफत हो रही है। ये बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन इसमें दुरुस्तगी और उस वक्त ज्यादा हो जाती कि जब उनको तनख्वाह अच्छी मिलती, उसके बाद वो करते तो। लेकिन उनके पास तनख्वाह उतनी अच्छी नहीं है। आज क्या वजह है कि उलमा इन गलत चीजों में जा रहे हैं? क्यों? वजह है कि उनको उनके परिवार को चलाने के लिए वो अखराजात नहीं मिलता। भाई उनके भी तो बाल बच्चे हैं ना, बच्चे को क्या पता कि मेरा अब्बा कमजोर है, मजबूत है, वो जो चीज़ देखेगा मांगेगा, हमको भी चाहिए, किसी और बच्चे को देखेगा हमको भी चाहिए, तो कैसे उसको हम समझाएंगे? और दूसरी बात कि अगर किसी आलिम के पीछे खर्च किया जा रहा है, उसको मजबूत किया जा रहा है, तो इनडायरेक्टली हम दीन का काम कर रहे हैं। ये बात